So, good morning, students. Yes, yesterday I told you about the definitions of statistics. Because of numerous definitions given of statistics, we classify them into two broad categories: plural sense definition and singular sense definition. So, we had started with the plural sense definition. In plural sense, statistics is defined as quantitative information. That is, any fact, any figure when expressed in numbers is statistics, right? So Bowley has given one definition. Statistics are numerical statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. This definition given by Bowley, even though it is not very comprehensive, but it does tell us a lot about statistics. This is plural sense definition. Now, we will be discussing the characteristics of statistics in plural sense. So, first characteristic is aggregate of facts. So, bete, any single fact, even if it is numerically expressed, cannot be called as statistics. Yesterday we discussed certain examples, right? I wrote down about 6 examples, out of which some were called as statistics, some were not called as statistics even though they were numerically expressed. So बेटे एक single fact, चाहे वो जितना मर्जी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, आज पंजाब में कोविड के कारण 178 डेथ्स हुई, ठीक है? दिस इज अ सिंगल फैक्ट. It is unrelated, unconnected, uncomparable, so it cannot be called as statistics even though it is numerically expressed. तो सिर्फ वही बेटे डेटा को, वही न्यूमेरिकल फैक्ट को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जो कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं. एग्रीगेट मीन्स they are collection of facts, right? A single fact, even though it is numerically expressed, cannot be called as statistics because it is unconnected, unrelated, uncomparable, right? Second characteristic, numerically expressed. Now this is the most important feature of statistics, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स कहते ही क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हैं. अब जो फैक्ट्स होते हैं बेटे, वो क्वांटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं. क्वालिटेटिव फैक्ट्स लाइक ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, इंटेलिजेंस, ठीक है, फ्रेंडशिप, health, patriotism, all these are qualitative facts. Now, qualitative facts, they lie outside the purview of statistics. Statistics is the study of numerical facts only. Okay? Statistics is the study of numerical facts. It does not pertain to qualitative facts. Next with it. Affected by multiplicity of causes. Now, statistics, these are affected by multiplicity of causes. Multiplicity of causes का मतलब क्या है? कोई भी फैक्ट अगर एक सिंगल कॉज से अफेक्ट होती है, सिंगल फैक्टर से अफेक्ट होती है, उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते. ठीक है, क्योंकि जितने भी फिनोमेना सिंगल फैक्ट से अफेक्ट होते हैं, वो जनरली साइंस की फील्ड में आते हैं. वेयर एज in the field of statistics where we are dealing with the social sciences, अभी आप स्टैटिस्टिक्स पार्ट कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है. कुछ बच्चे साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वहां पर भी उनको स्टैटिस्टिक्स आता है. फिलॉसफी पढ़ते हैं, वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स आता है, ठीक है. तो इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स हर साइंस में यूजफुल है, लेकिन सिर्फ हम उस क्वांटिटेटिव फैक्ट को ही स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं which is affected by multiplicity of causes. ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा फैक्टर अगर रिस्पॉन्सिबल है,
वही स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। आज लेट अस से यू नो प्रोडक्शन ऑफ से एनी कमोडिटी, कोई भी टीवी की प्रोडक्शन कम हो गई, ठीक है। इसका कारण क्या है? देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इट कुड बी ड्यू टू लॉकडाउन, इट कुड बी ड्यू टू लेबर प्रॉब्लम, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स, रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये मिलके इस फिनोमेना को अफेक्ट कर रहे हैं। तो वही फिनोमेना विच इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। आज wheat की प्रोडक्शन एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स ज्यादा होती है। सो व्हाट फैक्टर कुड वी एट्रीब्यूट फॉर इट? हम एक सिंगल फैक्टर को सिंगल आउट नहीं कर सकते कि रेनफॉल अच्छी हुई थी तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़िया हो गई। इट इज द मिक्स्ड all the factors like you can say rainfall as well as fertilizers as well as good seeds. They are responsible for the good production of wheat, right? Next bit है reasonable accuracy. Whenever we collect statistical data, we have to keep in mind a reasonable accuracy. A reasonable degree of accuracy has to be kept in mind while collecting statistical data. So what is the meaning of reasonable standard of accuracy? Accuracy का meaning पहले समझो। Accuracy means correctness, ठीक है। तो जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो तभी स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा अगर वो एक्यूरेट है। एक्यूरेट का मतलब क्या है? वो करेक्ट है। नाउ 100% correctness we cannot expect, right? We cannot expect 100% accuracy. What we require is a reasonable degree of accuracy. Aryan, I'll come back to you, just wait. What we expect is reasonable standard of accuracy. Now what is reasonable standard of accuracy? That depends upon the nature of data, nature of investigation, purpose of investigation, and what are the available resources with you, right? For example, अगर मैंने आप में से दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, दोनों को बोला कि पंजाब में ना एवरेज वीट की एवरेज प्रोडक्शन इन द ईयर 2018 का डेटा कैलकुलेट करके लाओ, ठीक है। तो ए स्टूडेंट ने बोला कि 500 क्विंटल वीट प्रोड्यूस हुई है, इसने बोला 500.2 क्विंटल एवरेज वीट है। नाउ ये 0.2 का डिफरेंस दोनों के बीच में जो आ रहा है दैट वी कैन स्किप बिकॉज ये क्विंटल्स में बात हो रही है, वीट की बात हो रही है। तो अगर 2 किलो वीट का फर्क भी पड़ जाएगा तो वो कुछ खास इतना फर्क नहीं होगा जहां पर हम क्विंटल्स ऑफ वीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने दो स्टूडेंट्स को बोला कि चलो ऐसे करो, जनवरी या में 2018 में गोल्ड का प्राइस, एवरेज प्राइस क्या था उसका डेटा मेरे को कलेक्ट करके दो। तो ए स्टूडेंट ने बोला कि पर ग्राम 4042 रुपीस गोल्ड का प्राइस था और बी स्टूडेंट ने बोला 4050 रुपीस पर ग्राम गोल्ड का एवरेज प्राइस था। बेटे अब गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, 1 ग्राम में आपने जब 8 रुपए का फर्क डाल दिया, ठीक है, तो वो 10 ग्राम में, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इट गेट्स यू नथिंग, चलो थोड़ा ज्यादा कर देते हैं 4060 कह दिया, तो 18 रुपीज का जो डिफरेंस है पर ग्राम ऑफ गोल्ड का, दैट इज अ लॉट of difference to be ignored. So here the data is not reasonably accurate, but here the data is accurate. Okay, but better give me a minute, I will just be back.
Next is बेटे mutually related and comparable. Mutually related, बेटे only those facts, those numerical facts can be called as statistics which are mutually related and comparable. Mutually related का मतलब क्या है? अगर मैंने कहा स्टैटिस्टिक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है, मैंने एक फैक्ट लिख दिया, मिस्टर एज सैलरी इज ₹1 लाख पर मंथ। मैंने कहा ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है बेटे, क्योंकि ये सिंगल फैक्ट है, इसको स्टैटिस्टिक्स बनाओ। आपने इसके साथ लिख दिया मिस्टर बीज हाइट is 5 feet 7 inches। आपने कहा मैम ये दो फैक्ट्स मैंने लिख दिए, दोनों न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है, अब ये स्टैटिस्टिक्स बन गया। क्या ये स्टैटिस्टिक्स बना बेटे? Even though it is collection of facts, but are these mutually related? These are two different facts. These are not mutually related. Hence, these cannot be compared. Right? On the other hand, अगर आप लिखते कि मिस्टर ए सैलरी previous month, in previous year या previous month used to be ₹80,000 per month, or there has been hike of 20% in the salary of Mr. A, then we could call it statistics, क्योंकि वो mutually related है और वो comparable है। तो जब हम कहते हैं एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इसका मतलब ये नहीं है कोई भी 4 नंबर इकट्ठे करके दे दिए वो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। वो तभी स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा अगर इट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, it is collected according to reasonable accuracy, it is mutually related as well as comparable. Clear bete? Next, predetermined objective. बेटे statistics जो होते हैं they are collected for a predetermined objective. Any information which is collected without any predetermined objective cannot be called as statistics. We collect data, if we collect data for any purpose, say to know the economic position of our country, right, or to know about the situation of COVID in our country. See, can you see this newspaper? But I think you can't read it out. I will just read it out for you. There is one news. It is today's newspaper only. Better make it a habit to read newspapers daily. Haryana's daily positivity rate touches 29.92%. This is statistics because it is collected for the specific purpose of knowing the state of COVID in our country. Similarly, bete, there is another news. A record daily spike in Punjab, 8,874 test positive. ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है कि पंजाब on Thursday witnessed a record 8,874 cases of infection, taking the tally to 4,16,000, while 154 more fatalities pushed the toll to 9,979 according to medical bullet. ये सारा डेटा जो कलेक्ट किया गया है बेटे, it is one thing, it is aggregate of facts, it is numerically expressed, affected by multiplicity of causes. कितने केसेस आ रहे हैं ये डिपेंड कर रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोग कितनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ठीक है, लोगों की इम्यूनिटी कितनी है, यानी एक सिंगल फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा। The data, because it is collected by the government sector, it is collected, it is reasonably accurate, then it is mutually related and comparable and collected for a predetermined objective, right? Next characteristic bete, enumerated or estimated. What is the meaning of enumerated? हमने कहा डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है,
डेटा को रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे कलेक्ट कर सकते हैं, यानी 100% एक्यूरेसी तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है, बट रीजनेबल एक्यूरेसी हमें चाहिए होती है। अब दिस डेटा कैन बी कलेक्टेड हाउ, आइदर थ्रू एन्यूमरेशन, या तो हम डेटा को एन्यूमरेट कर सकते हैं, और थ्रू एस्टिमेशन। एन्यूमरेशन का मतलब क्या है बेटे, अगर हम ईच एंड एवरी यूनिट को स्टडी करें फिर डेटा कलेक्ट करें, उसको बोलते हैं एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन मीन्स कंप्लीट स्टडी। मुझे आपके एवरेज मार्क्स निकालने हैं, मैंने आपसे हर स्टूडेंट को रोल नंबर वाइज बुला के पूछा, बेटे अपने मार्क्स बताओ, ठीक है, सारे मार्क्स टोटल किए, सबके मार्क्स पहले कलेक्ट किए, टोटल किए, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिए, मेरे पास क्या आ गए, एवरेज मार्क्स। और मैंने डेटा कैसे कलेक्ट किया, थ्रू कंप्लीट स्टडी ऑफ योर क्लास, जिसको हम कहेंगे एन्यूमरेशन टेक्निक। डेटा कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब क्या है, अगर लेट्स से आपके मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हैं 11th के सारे स्टूडेंट्स के, ना सिर्फ कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, और वो ऑल टुगेदर 600 स्टूडेंट्स हैं 11th में, तो बेटे इस केस में मेरे लिए कंप्लीट एन्यूमरेशन पॉसिबल नहीं है। How will I collect the data? I will make use of estimation technique. Estimation technique क्या होती है? We take a group sample of few units. ठीक है, हम a few units का sample ले लेते हैं, उनमें से हम इनको फिर डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने हर क्लास में से 5 स्टूडेंट्स ले लिए, और 5 स्टूडेंट्स की मैंने मार्क्स नोट डाउन कर लिए, और 5 स्टूडेंट्स की एवरेज मार्क्स जो थे वो मैंने पूरी क्लास के ऊपर अप्लाई कर दिए। इसको बोलते हैं सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट बेटे, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एनी न्यूमेरिकल डेटा टू बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स has to be collected in a systematic manner. अगर haphazard manner में कोई डेटा कलेक्ट किया गया है, उसमें से हम कोई भी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है, कोई भी डेटा अगर सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट नहीं किया गया, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि उसमें से कोई भी हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। So these are the characteristics of statistics. Now from all this discussion we can safely conclude that all numerical data can be called as statistics, but all numerical data cannot be called as statistics, but all statistics are numerical data, ठीक है। हर स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है, लेकिन हर न्यूमेरिकल डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिक्स होने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ही मस्ट नहीं है, इट हैज टू बी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, इट हैज टू बी अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, रीजनेबली एक्यूरेट, म्यूचुअली कंपेरेबल, it has to be collected for a predetermined objective, enumerated or estimated, and collected in a systematic manner.